and subsidiary cells, chloroplast is there, mechanism of opening and closing of stomata, nutrition in amoeba, Paleozoic nutrition, then digestive system, this gastric glands, these are emulsification, fat lighting. Now we'll come to the transportation. So this is a chart which is showing you that there are maximum number of population of the cells is in the of the RBC. So what is the function done by RBC is transport of oxygen, and leukocytes are the white blood cells which are of different population or different types. So we can see they are mainly involved in the defense and immunity. Then platelets are there which are then involved in the blood clotting. Now we can see in the RBCs there is a pigment called as hemoglobin, and it is a respiratory pigment red in color, due to which the RBC is red in color, and it attaches to the oxygen. Now this is human heart. It is having the left and right portions. The left portion is full of oxygenated blood, and the right portion is full of deoxygenated blood. So from whole body, the deoxygenated blood is coming into the right atrium from the superior and the inferior vena cava, and it's pouring into the upper chamber, and then it goes through the tricuspid valve. It is going into the right ventricle. From right ventricle, it is moving from to the pulmonary artery. It's going into the lungs for oxygenation. So oxygenation हो जाती है, वो अपनी ऑक्सीजन वहां से ले लेता है, और अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, एंड फ्रॉम देयर through the forceful contraction and powerful contraction of left ventricle, it goes from the aorta, and aorta branches to various arteries, main arteries, which supplies to the upper head portion and our arms, and then lower portions of the body. And then it through the at various regions, it also branches into capillaries. Therefore the blood is supplied all over the body. Now come to the this is the double circulation diagram which is given here. So the right side is getting the deoxygenated blood from the you will notice that the blue colored here fluid is coming, and it is going into the right side of the heart, and from right side it is moving by the contraction of the heart. It is going through the pulmonary artery to the lung above. At above there is a lung which is lungs, representative lungs are shown, and there air exchange will take place. The lungs will exchange the air, and then it will get oxygenated, full of oxygen, and then it will become red in color and will come from the pulmonary veins into the left side of the heart, and then it will go from the bicuspid valve into the left ventricle, and from powerful contraction it is again going to the through the aorta, it is again going to the body tissues. This is clear. Arteries and veins difference. What is the difference? The blood vessels which carry blood from heart to the organ are called arteries, and the blood vessels which are carrying blood from heart from various body parts to the heart are called veins. So arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Artery does not have valve, and veins have valve present to prevent the backflow of the blood. क्योंकि आर्टरीज में वॉल्व्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल्व इतनी पावरफुल होती हैं, मस्कुलर होती हैं, कि वो उन्हें प्रेशर में वो ब्लड पंप करती हैं, पर वेन्स में प्रेशर में ब्लड नहीं होता, तो उनको वॉल्व की जरूरत है, तो वो वापस ब्लड लाती हैं, क्योंकि आर्टरीज आर थिक वॉल एंड वेन्स आर थिन वॉल. नाउ ब्लड प्रेशर की बात कहते हैं, तो हार्ट एक पंप की तरह कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर जनरेट करता है. तो हम कई बार देखते भी हैं, डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापता है, तो उसके पास एक बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर, तो वहाँ पे लेफ्ट आर्म पे आपका ब्लड प्रेशर नापता है. तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द हार्ट एंड द ब्लड फ्लो इन ऑन टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड प्रेशर आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड, वो होता है. नॉर्मल रेंज इसका 120/80 होता है. So 120 is the systolic pressure, higher range, which the contraction के दौरान जो महसूस होता है, और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या है,
लोअर वैल्यू है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन के वक्त इतना प्रेशर हार्ट में होता है। तो ब्लड के पास अब बात आती है प्लेटलेट सेल्स की। तो प्लेटलेट सेल्स का काम क्या है, वो हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं। प्लेटलेट सेल क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कभी भी इंजरी होती है तो ज्यादा ब्लड फ्लो को रोकते हैं। नाउ लिम्फ, व्हाट इज द लिम्फ? लिम्फ इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका अलग से सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इसको बोला जाता है। तो टिश्यू फ्लूइड होता है ये जब भी कैपिलरी रीजन पे, टिश्यू लेवल पे, जब भी कैपिलरी में हाई ब्लड प्रेशर के दौरान ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो लीकेज हो जाता है वहां पे, कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सारा लिक्विड रिलीज हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा का सारा लिक्विड बाहर रिलीज हो जाता है, उसी से लिम्फ बनता है। सिर्फ ब्लड सेल्स बाहर नहीं जाते और प्रोटीन्स बाहर नहीं जाते, डब्ल्यूबीसीज भी चले जाते हैं बाहर, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का डायमेंशन छोटा है, वो क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। देन ये कलरलेस या येलोइश कह सकते हैं इसको होता है, एंड इट कैरीज द डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट्स। येलोइश इसीलिए कि इसमें फैट्स भी तैर रहे होते हैं, तो फैट तो येलो कलर के दिखते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में लिम्फेटिक कैपिलरीज है, आर्टेरियोल है एक तरफ वेन्यूल है, बीच में कैपिलरीज है। तो आर्टेरियोल्स क्या है? ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ब्रांचेस और फर्दर फाइनर छोटी ब्रांचेस बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टरी, उन्हें बोल रहे कैपिलरी नेटवर्क। और दूसरी तरफ ये सारी कैपिलरीज जब इसमें मतलब डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन दे दी, यूजफुल चीजें दे दी टिश्यूज को, पीछे टिश्यूज का वो दिख रहा है। तो टिश्यूज ने जब सब चीजें ले ली, एक्सचेंज कर लिया, तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी तरफ से हमें दिख रहा है, तो वो वेन्यूल हो गया। इज अ स्मॉल वेन which is formed after the joining of all the small veins। तो वेन्यूल बनी और वेन्यूल एक वेन में देन ज्वाइन हो गई। तो इस तरह का नेटवर्क है आपके टिश्यूज में। तो बॉडी टिश्यूज इतने सारे हैं वहां पर, ये सब है, तो वहां पर लिम्फ बनता ही रहता है। और लिम्फ कम से कम 1.5-2 लीटर 2.5 लीटर लिम्फ बनता है पूरी बॉडी में, वापस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हार्ट के पास लाया जाता है और फिर हार्ट में ही वेना कावा के थ्रू डाल दिया जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स आके वेना कावा के अंदर पोर करते हैं, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट से ये लिम्फ मूव होता है, अदरवाइज अगर आप मसल्स की प्रॉपर मूवमेंट नहीं करोगे तो लिम्फ ऊपर नहीं आ सकता, बॉडी में एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है कहीं पे भी। तो हमेशा मसल्स की मूवमेंट करते रहना चाहिए। Transportation in plants, in plant vascular bundles are responsible for transportation। vascular bundle यानी xylem phloem की बात हो रही है, xylem water transport करेगा, phloem food transport करेगा, और water और minerals आपके हमेशा one direction में यानी ऊपर from roots to up it will go, and phloem का transport bidirectional होगा, दोनों डायरेक्शन में फूड जा सकता है। Then transportation in plants transportation of the food and water minerals take place through the conducting tissue xylem phloem। Xylem transport waters and minerals from the roots to all other parts of the plant। It consists of xylem vessels and tracheids। Water and mineral enter the roots by diffusion, then due to transpiration the suction force help in the upward movement of the water and minerals। So xylem transport करता है water minerals को root से और सारे parts में भेजता है, और ये xylem vessels और tracheids का बना है। दो मेजर सेल्स जो है जाइलम के अंदर, वो वेसल्स और ट्रैकिड्स है। वाटर मिनरल एंटर करता है रूट से डिफ्यूजन के थ्रू, एंड देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपिरेशन से एक सक्शन पुल बनता है पत्तों के लेवल पे, कि पत्तों के ऊपर जब सूरज की धूप पड़ रही है तो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वहां पर एक नेगेटिव प्रेशर बनता है कि नीचे से पानी खींचते हैं, तो वो जो भी जाइलम पूरे आपस में कनेक्टेड है वो नीचे से पानी ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये पूरा एक ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। इससे ये बताती है कि कैसे पानी ऊपर जाता है, ठीक है। नाउ हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द रूट्स, अभी हमने बताया, पर रूट के रीजन पे कैसे होता है, तो थ्रू रूट हेयर्स। रूट हेयर्स बहुत फाइन फाइबरस है, तो उनके अंदर वो सिंगल सेल लेयर के होते हैं, तो डिफ्यूजन आराम से बाहर से सॉइल से पानी अंदर आ जाता है। At the root, the cells in contact with the soil actively absorb ions due to this difference in ion concentration of the ions, so water moves into the root, ठीक है। तो रूट हेयर के अंदर ऑलरेडी इतने सारे आयन होते हैं, तो वाटर पोटेंशियल कम होता है, आयन ज्यादा होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वाटर बाहर से अंदर आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से अंदर आ जाता है। नाउ एसेंट ऑफ सैप क्या है, एक बार पानी रूट के अंदर आ गया, जाइलम बंडल्स में आ गया, तो ट्रांसपीरेशन, अब मेजर फोर्स जो हो जाएगा वो ट्रांसपीरेशन हो जाएगा।
ट्रांसपिरेशन के सक्शन पुल की वजह से वाटर अपवर्ड खींचा जाएगा एंड पुल एक की तरह एक्ट करेगा। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड किस तरह से ट्रांसलोकेट होता है, तो जहां पर जाइलम मंडल है उसके साइड में ही फ्लोएम के भी टिश्यूज है। तो जैसे ही लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई उसने फूड बनाया, तो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो फ्लोएम में जो भी फूड बना है लीफ से वो फ्लोएम के अंदर पहले तो लोड किया जाता है, तो इसे बोलते हैं लोडिंग ऑफ फूड। सो लोडिंग इनटू द फ्लोएम, तो वो एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज शुगर का साइज बड़ा है तो एटीपी की मदद से पोर साइज बड़ा करके और ट्रांसपोर्ट करके शुगर को फ्लोएम के अंदर डाला जाता है, तो इसे लोडिंग बोलते हैं। देन सोर्स पे लोडिंग कर दी जाती है फूड की, एंड देन वो वाटर, वहां पर क्या होता है वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो साइड के जाइलम से पानी उधर आ जाता है। नाउ एक ऐसा मास फ्लो बनता है कि वहां से अब कहीं पे भी जहां जाना है सोर्स सिंक वाले एरिया में वहां चला जाए अपने आप ऑटोमेटिकली, फिर देन वहां से वो दोबारा से रिलीज हो जाएगा सिंक में। Now phloem transport food from the leaves to the other part of the plant. This process is called translocation. The phloem consists of seed tubes and companion cell. Food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of ATP molecule. Due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transport of food. तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से दूसरे पार्ट्स में। इसको ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत लंबे ट्रांसपोर्ट इसका होता है और ये बाई डायरेक्शनल भी है, तो इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे, चेंज ऑफ द लोकेशन। तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, फ्लोएम को सीव ट्यूब्स के सेल से मिलके बना है, कंपेनियन सेल से मिलके बना है। हमने 9th में ही पढ़ा है कि फ्लोएम के कंपोनेंट्स ही है। फूड लीफ से ट्रांसफर किया जाता है जाइलम में थ्रू द यूज ऑफ एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल, जो मैंने बताया कि एटीपी की मदद से ही ये होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट में एटीपी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, वाटर आराम से ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट फूड ट्रांसपोर्ट में एटीपी की मदद होती है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर द फ्लोएम एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। Now concentrated sugar solution, diluted sugar solution, this is none of your business and this is just a diffusion thing. Now excretory system, we come to the excretory system of human consists of a pair of kidneys which are bean shaped organ located at the back side of the abdomen, and on the above of the kidney there are adrenal glands. Okay, and from both the kidneys a tube, pair of tube ureter is coming out and it is pouring it into the urinary bladder, and then urethra is there. Now excretory system has in kidney, kidney is having the functional unit called nephron, and lungs are there alveoli which are helping the exchange of gases. So it is also releasing our waste gas carbon dioxide outside, so it is also excretory organ. Lungs भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, वो भी वेस्ट CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। स्किन एक एक्सक्रीटरी पार्ट है, वो भी स्वेट ग्लैंड्स की वजह से पसीना बहुत निकालती है, उसके साथ साथ बहुत सारा स्वेट सॉल्ट और ये सब चीजें ट्रेस एलिमेंट्स केमिकल वेस्ट यूरिया वगैरह निकलता है। लीवर अमोनिया रिलीज करता है। नाउ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वेस्ट मेजर अमाउंट में जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सॉल्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है। जो भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रहा है वहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जैसे अमीनो एसिड ब्रेक हो रहे हैं, प्रोटीन ब्रेक हो रहे हैं या नए प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो उस वक्त नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता ही निकलता है। तो उसको किसके फॉर्म में हमारी बॉडी से निकाला जाता है? यूरिया की फॉर्म में। वो चाहे किसी भी फॉर्म में बने, ज्यादातर हमें अमोनिया की फॉर्म में होता है, पर अमोनिया हाईली पॉइजनस होती है, तो उसे लेस पॉइजनस बन के लेस टॉक्सिक बना के यूरिया बना के उसे फिर रिलीज कराया जाता है थ्रू यूरिन। तो इसलिए यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है और उसमें रीनल आर्टरी रीनल वेन्स ब्लड ला रही हैं, तो रीनल आर्टरी ब्लड लाएगी किडनी में और वो किडनीज में जाएगा, फिल्टर होगा थ्रू नेफ्रॉन और फिर यूरिन बनेगा, जो यूरिन यूरेटर के थ्रू धीरे धीरे पोर होता रहेगा और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर रहेगा और फिर वो यूरेथ्रा की रिलैक्सेशन से जब यूरिनेशन करेंगे तो इट कैन रिलीज आउटसाइड। Now urinary system is the main excretory system, consists of these things: 2 kidneys, 2 ureter, 1 urinary bladder, 1 urethra, and उसके सबके functions यहाँ लिखे हुए हैं। Then this is the inner view, internal view इस तरह का दिखता है कुछ kidneys का और उसके blood vessels का। Now inside, if we see the cut section,
कट सेक्शन में इस तरीके से येलोइश कलर के पिरामिड्स टाइप दिखते हैं, बिल्कुल इंटरनल में, बाहर की तरफ पिंकिश रीजन हमें दिखता है। और इसको भी और फाइनली देखेंगे तो मेडुला के अंदर बहुत सारे फाइब्रस नेफ्रॉन्स लोकेटेड होते हैं। तो जो मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, वो आपकी किडनी के बिल्कुल इंटरनल फंक्शनल यूनिट्स हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं। नेफ्रॉन्स विद इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों पोर्शंस में होते हैं किडनी के। And the tube of the nephron surrounded by cells and network of blood vessels spread throughout this tissue. नेफ्रॉन की ट्यूब सेल और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स से हमेशा घिरी रहती है। Therefore, materials that leave the nephron enters the surrounding cells and returns to the bloodstream by the network of vessels. तो जो भी नेफ्रॉन में चीजें जाती हैं, जो भी उसमें ब्लड जा रहा है प्योरिफिकेशन के लिए, तो वहां से फिल्ट्रेट बना देता है वो, और ब्लड को वापस ब्लड वेसल्स में साफ करके वहां रखता है। तो फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, फिल्ट्रेट में अच्छी चीजें भी चली जाती हैं और खराब चीजें भी चली जाती हैं। तो उससे वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फिल्ट्रेट का इससे यूजफुल चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब करनी होती है। सेकंड स्टेप बनता है जिसमें जो होता है नेफ्रॉन का बाकी पार्ट्स, ट्यूबुलर पार्ट मेनली क्या करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। सबसे पहला पार्ट ग्लोमेरुलस है, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो उसके कप शेप स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल्स में है। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द बोमन कैप्सूल। देन ट्यूबुलर पार्ट शुरू हो जाता है। कप शेप के बाद सबसे पहला कॉइल पार्ट आता है जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। देन एक यू शेप की ट्यूब आती है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल बचता है जिसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो जाती है। डायग्राम देखोगे, यहाँ डायग्राम है। तो सबसे पहले जो राउंड कप शेप स्ट्रक्चर है वो आपका बोमन कैप्सूल है, जिसके अंदर एक जाल जैसा है नेटवर्क का कैपिलरी का, उसे ग्लोमेरुलस बोला है। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है यूरिन बनने का, कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, क्योंकि यहाँ पे खून बहुत ही प्रेशर में है, तो आराम से वो फिल्टर होके फिर वो पीसीटी में जाता है। फिर पीसीटी के बाद फिर वो वहां पर रीअब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेप रीअब्सॉर्प्शन, देन लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्सॉर्प्शन चल रहा होता है। उसके बाद आपका डीसीटी में लास्ट स्टेप सिक्रीशन हो रहा होता है, और कलेक्टिंग डक्ट के भी लास्ट पार्ट में सिक्रीशन होता है। तो 3 स्टेप हैं। ये डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में इतने लेबल्स नहीं है, पर आप जितने लेबल्स कर सकते हो, थोड़े बहुत लेबल आपको करने हैं। देन किडनी का डायग्राम यहाँ दिखा है कि आर्टरी से ब्लड आ रहा है, प्योरिफिकेशन के बाद वापस वेन से ब्लड जाएगा। तो फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू नेफ्रॉन किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ग्लोमेरुलस में पहले तो ब्लड आ रहा है, तो वहां फिल्टर हो रहा है। देन फिल्ट्रेट किस में जा रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले मींस जो डाउनवर्ड जा रही है लूप ऑफ हेनले। देन असेंडिंग लिम्ब अपवर्ड आ रही है, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो दोबारा से कॉइल्ड है, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में चली आएगी। देन उसके बाद रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टरियोल्स, इंटरलोबुलर वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपको 11th में समझना है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ द किडनी, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, दीज आर 3 प्रोसेसेस, filtration, selective reabsorption, secretions, maintain the pH of the blood. This is the function of the kidney। के अगर किडनी अपना काम नहीं करेगी तो pH ब्लड का खराब हो जाएगा, pH अप और डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल्स को डैमेज हो सकता है। pH मेंटेन करना बहुत जरूरी है सेल्स के लिए। रिमूव वेस्ट फ्रॉम एंड वाटर, वेस्ट और वाटर रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाएगी नहीं तो फिर बॉडी में। रिलीज हार्मोन्स, किडनी भी कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे खून भी बनाने के फैक्टर्स भी कुछ किडनी बनाती है, कि खून जो हमारे शरीर में बनाता है। वाटर 96% यूरिन की कंपोजिशन यहाँ दे रखी है कि उसमें सबसे ज्यादा तो वाटर होगा, यूरिया उसमें 2%, वाटर उसमें 96%, और बाकी सारे नाइट्रोजनस बेसिस जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, ये सब उसमें 2% होते हैं। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का डायग्राम दे रखा है कि एक तरफ से एक वेसल आ रहा है जो ब्लड लेकर आ रहा है, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनी हुई है ग्लोमेरुलस। देन इफरेंट आर्टरियोल वहां से फिर वापस जा रहा है। तो इसमें पूरे बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, पासिंग ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, सिंपल प्रोसेस है। द फिल्ट्रेशन ऑफ mainly take place in the glomerulus. The glomerulus is a small network of capillary encased in the top of the nephron by a hollow cup-shaped structure called Bowman capsule.
Fluid from the blood flow into the Bowman capsule. The material filtered from the blood include water, urea, glucose, salts, amino acids, and some vitamins. Plasma, proteins, cells, and platelets remain in the blood because they are too large to pass through the capillaries. Now reabsorption filtrate हो गया, उसके बाद उसमें से 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बहुत सारे यूजफुल चीज़ें वापस से ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो फिल्ट्रेट में यूजफुल चीज़ें हैं उनका ही वापस अब्जॉर्ब होना ब्लड वेसल में, उसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एंड देन सिक्रीशन इज द लास्ट स्टेप। कुछ ऐसी चीज़ें जो अब इतनी सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हुई हैं तो फिर उसमें बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा कि आयंस भी कुछ इस तरह के ज़्यादा अगर चले गए हैं तो जस्ट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन का पीएच मेंटेन रहे और वो सब नॉर्मल रहे, उस वजह से बॉडी के टिश्यूज थोड़ा चीज़ें सिक्रीट कर देते हैं। तो वापस से फिल्ट्रेट में कुछ ऐड होना सिक्रीशन कहलाएगा। लास्ट स्टेप में सिक्रीशन होता है। तो लूप ऑफ हेनले इज अ section, DCT is a section where secretion take place and collecting duct, just collecting duct में जो DCT जाती है वहां पर secretion होता है। देन बात करते हैं कि नेफ्रॉन के बाद प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब तक हमने ये देखा एनिमल्स में कैसे होता है। प्लांट्स में कई तरीके हैं कि प्लांट्स भी एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोसेसेस वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि वो भी कंटिन्यूसली अगर नाइट के वक्त वो ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को क्योंकि ज़्यादा CO2 वो बनाता है, तो इसी वजह से सफोकेशन हो सकती है। So it releases CO2 as waste. It then through stomata it is released. Excess water भी release हो रहा है through stomata, that is transpiration. This is also a way of removal. Anything which is excess is waste. So stomata से पानी निकल रहा है, वो भी आपका एक्सक्रीशन में आ रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में भी स्टोर हो रहे होते हैं, लीव्स ड्राई हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो वो भी एक वे है एक्सक्रीशन का। हम वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स गम रेजिन स्टोर हो जाते हैं ओल्ड जाइलम में, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द रूट से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। अब डायलिसिस क्या है, ये एक छोटा सा पोर्शन आपको दे रखा है कि जब किसी की किडनी खराब हो जाएंगी और उसको या तो ट्रांसप्लांट कर दो या उसका थोड़ा सा डायलिसिस से वो मैनेज किया जा सकता है, वेस्ट उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऐसा पेशेंट जिसको किडनी डिजीज है उसके लिए डायलिसिस किया जाता है। एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के थ्रू उसका एक आर्टरी से ब्लड निकालकर और उस आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें उसको रखकर और उससे ब्लड प्योरीफाई किया जाता है, वापस से वेन के थ्रू वो डाल दिया जाता है। तो डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होके वापस से वेन के थ्रू उस प्योरीफाइड ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। So this is these are all processes, transportation, excretion, this we have studied here.